Hello students. In the last video we have discussed about how to identify the nature of the roots of the given quadratic equation. Now I am here with little different example. If you will observe carefully, then you will come to know that what is the small changes or which are the small changes in this example. Look here, read this example. A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meter in such a way that the differences of its distances from the two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. Is it possible to do so? Is it possible to do so? If yes, at what distances from the two gates should the pole be erected? Means what is meant by this statement, what is meant by this example, that I am going to tell you first of all. Okay, for understanding purpose, here I have drawn figure. Look this figure. Okay, here there is one circular park whose diameter is 13 meter. Whose diameter is what? 13 meter. Try to understand what is written over here. Okay, here there is one circular park whose diameter is given over here 13 meters in such a way that the differences of its distances from two diametrically opposite fixed gates, means here there are two gates and the name of the gates are gate A and gate B. Here I have shown this gate A and gate B. And again one point I have taken over here. For what purpose? Look here. If you will observe carefully, then you will come to know that a pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meters. यानी कि here there is one circular park. That circular park is having two gates A and B. That circular park is having two gates, gate A and gate B, whose diameter is 13 meter. Whose diameter is what? 13 meter. And there is one pole, and that pole I have shown by using letter P. And there is one pole, and that pole is erected on the boundary of the circular park. If you will observe carefully, then you will come to know that this is the boundary. Okay, and on the boundary of the circular park, one pole is erected over here at point P, we can consider. Okay, and the difference in between this pole and gate A, this pole and gate B, the difference is between those two poles. Look here, the difference in between distance of the poles is given here. The boundary is 7 meter. Look here, the differences of its distances from the two diametrically opposite fixed gates A and B. Okay, opposite, two diametrically opposite यानी कि यहाँ क्या, एक दूसरे के सामने ही वो गेट है एक दूसरे के सामने ही वो गेट है A and B, और एक दूसरे के सामने होने के कारण when we are going to join the distance in between those two gates, that will be the diameter of that respective circular park. That's why I have shown in this way. And after that, here there is one pole. That pole is situated in such a way, the distance of pole from gate A and B, that difference is given, means AP minus BP, suppose we will see, then that is given, and that difference is 7 meter. Is it possible to do so? If yes, at what distances from the two gates should the pole be erected? Means ये जो पोल है पॉइंट P पे, जो हमने पॉइंट P इधर कंसिडर किया है. ओके, तुम इधर किधर भी कंसिडर कर सकते हो. क्यों कंसिडर किया है? देखो, फिर से मैं एग्जांपल के तरफ आके तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूं. अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कुलर पार्क. यानी कि पोल किधर है? जो सर्कुलर पार्क की बाउंड्री है, किधर भी इधर तुम ले सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. ओके, इधर मैंने लिया है, तुम इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, क्योंकि उन्होंने फिक्स प्लेस नहीं दिया है, बाउंड्री पे पोल है ऐसा दिया है. और difference in between gate A and that pole, gate B and that pole, that distance difference means AP and BP जो distance है वो पोल से हम रिलेट करते हैं. यानी कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि APA डिस्टेंस है गेट A का पोल से, और दूसरी भाषा में ऐसे बोल सकते हैं APA डिस्टेंस है पोल का फ्रॉम गेट A से. BPA जो डिस्टेंस है वो पोल का डिस्टेंस है फ्रॉम गेट B. अदरवाइज ऐसे भी हम बोल सकते हैं
ये जो बीपी डिस्टेंस है वो पोल से गेट बी कितनी दूरी तक है ये हमें बता देता है। समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट two gates should be, look here, if yes, at what distances from the two gates should the pole be erected? तो हमें AP और BP इधर फाइंड आउट करना है। ओके, तो फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज दिस फिगर इज शोन ओवर हियर। इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली देन यू विल कम टू नो दैट ओके वट एवर आई टोल्ड यू that I'm going to write here for your better understanding. Look here, let P be the required location of the pole. Let, look here carefully, let P be the required location of the pole. Let P be the required location of the pole. Let the distance of the pole from the gate B, okay, the distance of the pole from the gate B and the distance of the pole from gate A, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो उसमें हम क्या करेंगे? देखो पहले क्या किया है, लेट P be the required location of the pole. ओके, ये जो P पॉइंट है वो रिक्वायर्ड लोकेशन है पोल का। तो बाद में हम क्या करेंगे, द डिस्टेंस ऑफ द गेट B from the pole we will consider that is x. Then we can identify AP because we want to find out AP and BP. Are you getting? That you will consider over here. Let the distance of the pole from the gate B, what I told, let the distance of the pole from gate B, let the distance of the pole from gate B we will consider be x मीटर। क्या हमने कंसिडर किया? x मीटर। ओके, देयरफॉर वी कैन राइट ओवर हियर BP is equal to x meter. Got idea up to this step? Try to understand first of all what I said. Okay, ये जो AP और BP है इस फिगर में ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हमने BP कंसिडर किया x, तो AP अभी लिखेंगे। देखो, नाउ द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द टू गेट्स, नाउ द difference of the distance, or we can say distances of the pole from two gates is equal to, देखो क्या लिखा है, now the difference of the distances of the pole from the two gates. ओके, इसका जो डिफरेंस है AP और BP का वो हमें ऑलरेडी इधर दिया है, व्हाट इज 7 मीटर्स। दैट विल राइट हियर AP माइनस BP इज इक्वल टू 7 मीटर। AP minus BP is equal to what? 7 meter. Here we can find out AP. AP is equal to 7 plus BP, that is equal to 7 plus X. समझे? यानी कि AP अभी हमें मिल गया अभी और BP ऑलरेडी हमने कंसिडर किया है। गॉट आइडिया? ओके, ended out up to this step. Now look here. Now AB is equal to 13 meter. Already it is given and I have shown in the figure also. AB is equal to what? 13 meter. Diameter of the circular here it is given. Diameter of the circular park is what? 13 meter. Got idea? Okay. Then look here. Now AB is equal to 13 meter. If you will observe figure carefully, then you will come to know that AB is the diameter, and because of this diameter the circle is divided in two parts. We can say semicircle, and you know that very well. The angle in between or we can say the angle in semicircle is always right angle or 90 degree. Since look here,
नाउ ए बी इज इक्वल टू 13 मीटर. ए बी इज अ, फॉर अंडरस्टैंडिंग लिखता हूँ इधर, डायमीटर. देयरफॉर एंगल, एंगल कौन सा, देखो इधर, ए पी बी. देयरफॉर एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. लुक दिस फिगर, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये 90 डिग्री का एंगल होगा. तो वी विल यूज हियर राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम इन केस, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से वी विल यूज हियर पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या है, देखो इधर, यू नो दैट हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर. इधर हाइपोटेनस क्या है, देखो फिगर में, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर. ओके, इधर लिखेंगे हम, बाय यूजिंग विच थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, we get by using Pythagoras theorem. यूज करो, हाइपोटेनस स्क्वायर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर. ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर. गॉट अडेप्ट दिस स्टेप. ओके, पुट वैल्यूज. ए पी की वैल्यू हमें मालूम है, ए बी की वैल्यू क्या है, 13, दैट इज इक्वल टू, ओके, ए पी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, एक्स प्लस 7 स्क्वायर प्लस बी पी यानी कि पी बी एक्स स्क्वायर. ओके, फॉर फाइंडिंग एक्स, एक्स हमें फाइंड आउट अगर हो गया तो दोनों बातें फाइंड आउट होंगी. यानी एक्स यानी कि क्या है, डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम गेट बी, डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम गेट बी, इस डिस्टेंस से बी पी. ओके, तो एक्स पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. 13 स्क्वायर 169 इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट का एक्सपांशन करो, एक्स प्लस 7 स्क्वायर है तो ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर एक्सपांशन, ये ए की वैल्यू, एक्स यानी कि ए की वैल्यू, 7 यानी कि बी की वैल्यू, एक्सपांशन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी, बी यानी कि ए इंटू बी, बी यानी कि क्या है 7 प्लस 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. गॉट अडेप्ट दिस स्टेप. ओके, सॉल्व करो अभी. 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 यानी कि 14 एक्स प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर. आगे जाके सॉल्व करेंगे, देखो क्या आता है. ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 169. गॉट अडेप्ट दिस स्टेप. देखो 2x स्क्वायर प्लस 14x, ये ट्रांसफर करेंगे, 169 माइनस 49, देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस 14x इज इक्वल टू, आंसर कितना आता है 120. देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस 14x, ये ट्रांसफर करो इस साइड, माइनस 120 इज इक्वल टू 0. ओके, आर यू गेटिंग. तो अभी देखो इसमें कुछ कॉमन हो सकता है. इधर अगर तुम देखोगे ध्यान से तो 2 इज़ द कॉमन फैक्टर. तो हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड दिस इक्वेशन, इसके पहले में हमने ये पॉइंट देखे हैं, डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2, अदरवाइज टेक 2 कॉमन एंड डिवाइड टू द RHS. इसमें से 2 कॉमन निकाल के RHS को भी डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, डिवाइड इक्वेशन बाय 2 वी गेट, डिवाइड करो इस इक्वेशन को. ओके, अभी डिवाइड करता हूँ, देखो 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2. ओके, डिवाइड इक्वेशन यानी कि LHS और RHS को भी डिवाइड करना चाहिए. ओके, डिवाइड करो अभी एक एक सेपरेट टर्म को. 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 14x डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस 120 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर मीन्स 0 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स
0 आता है आंसर। देयरफॉर 2 विल गेट कैंसल, एक्स स्क्वायर 2 1 जार 2 2 7 जार प्लस 2 1 जार 2 2 7 जार यानी कि प्लस 7x 2 1 जार 2 2 6 जार माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो हमें इधर क्या मिला, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। समझे? अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए पहले नेचर देखेंगे, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देखेंगे। अगर उसको रूट्स है तो रूट्स फाइंड आउट करेंगे, नहीं तो स्टॉप करेंगे। ओके, नाउ कंसीडर व्हाट, discriminant. Now consider discriminant. For that purpose we have to find out the values of a, b and c. a is equal to 1. अभी कंपेयर करके कैसे फाइंड आउट करना है तुम्हें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इधर। नाउ कंसिडर डिस्क्रिमिनेंट, a is equal to 1, b is equal to 7 and c is equal to minus 60. What idea up to this step? अभी डिस्क्रिमिनेंट की यानी कि b स्क्वायर माइनस 4 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। Therefore b square minus 4ac is equal to माइनस नहीं है, ओनली 7 है, तो 7 स्क्वायर क्या किया है देखो, 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू माइनस 60। समझे? गॉट आइडिया? फिर से लिखता हूँ देखो फॉर अंडरस्टैंडिंग। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 60। वैल्यू हमने क्या की, पुट की। अब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, देखो इधर एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं हम। देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 7 स्क्वायर कितना आता है 49 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 60। देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 49 माइनस इंटू माइनस, ये देखो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 60 कितना आता है 240। एम राइट? आंसर कितना आता है 240। ओके, तो लिखो इधर। देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 240 प्लस 49 यानी कि 289 एंड 289 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि इसको रूट्स है, 2 डिस्टिंग रियल रूट्स है, इसको 2 रूट्स है और 2 भी अलग अलग है। ओके, तो हम अभी क्या करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, फाइंड आउट करो, अभी यूज करो इधर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस इन द स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी, अभी b की वैल्यू हमने क्या ली थी 7 ली थी, और वो प्लस था या माइनस 7 था, प्लस 7 था। ओके, फिर से दिखा देता हूँ, देखो इधर तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू थी माइनस 60। अभी बी की वैल्यू का पॉइंट है इधर, इसलिए मैंने फिर से तुमको दिखाया। गॉट आइडिया? अभी पुट करो वैल्यूज इधर, क्या आता है देखो, -7 प्लस और माइनस इन द स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 289 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 1। x इज इक्वल टू -7 प्लस और माइनस 289, एक किसका स्क्वायर है 17 का स्क्वायर है, तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं इधर, स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 17 वी हैव रिटन हियर स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 2। x इज इक्वल टू -7, वंस विल राइट प्लस डिवाइडेड बाय 2 और x इज इक्वल टू -7 माइनस 17 डिवाइडेड बाय 2। Understood? Okay, what we will get, see here, 10 divided by 2, am I right? 10 divided by 2 or x is equal to
-17 -7 -17 -7 कितना आता है? व्हाट इज आंसर? -24 divided by 2. Got idea? Okay. Maximum time students are getting confusion here also. Okay, I surprise many times. माइनस माइनस प्लस करके लिखते हैं और +24 लिखते हैं, ये भी गलत आंसर है, रिमेंबर. ओके, साइन सेम है क्योंकि एडिशन है. गॉट आइडिया? देन व्हाट यू विल गेट? वी विल फाइंड आउट हियर आंसर. Therefore x is equal to 10 divided by 2 5 or x is equal to -12. What we got? X is equal to 5 or x is equal to -12. Understood? But the very important thing is that x is the distance between the pole. What is meant by x? That is very important. We have considered in the beginning only. X is what? Distance of the pole from gate B. Distance of the pole from the gate B. That's why what we have to do here? Here x is the distance between the pole and the gate B. It must be positive. Therefore x is not equal to -2. So x is equal to what? 5. That I will write here. But x is a distance of a pole from gate, which gate? B. Therefore x is not equal to -12, but x is equal to 5, because distance must be what? Positive. Because distance must be what? Positive. Do you understand? Okay. Then therefore BP is equal to x and AP is equal to 7 plus x. Therefore BP is equal to x value, what we got? 5 meter, and AP is equal to 7 plus 5. Therefore BP is equal to 5 meter and AP is equal to what? 12 meter. Got idea? What we got here? BP is equal to 5 meter and AP is equal to 12 meter. Means we can write in the words, the pole has to be erected on the boundary of the park at the distance of 5 meter from the gate B. At the distance of 5 meter from the gate B and at the distance of 12 meter from the gate A. Got idea? I hope so you got idea about it. You can write in the words also. जिनको वर्ड्स में लिखना है अभी मैंने जो बताया, ओके, वो वर्ड्स में तुम लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. यही तक तुम ऐसे एग्जाम्पल तुम्हें ये सॉल्व करना है. ओके, रिमेनिंग पॉइंट्स विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.